do. If you don't understand, we can catch up. Okay, two bulbs are having rating 100 watt, and so this type of problem. Okay, if you look at this type of problem, the first one, we are told about two different type of bulbs and two different type of power ratings. So एक का अगर हम power rating देखें, power rating कितना है 100 watt, and the power rating of the other bulb is equal to how much? 60 watt. Okay, 60 watt. Try and understand what is being asked. The voltage is being given to you. The voltage for the first one is given 220 volt. The voltage for the second one is also 220 volts. समस्या ही है. Okay, 220 volts. 20. Which one has greater resistance? They've asked you which one has greater resistance. That means we need to have a formula which ties power, voltage and resistance, PVR. अगर आपको आता है बहुत अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं आता है, you don't know, आराम से सेट हो जाए. तो पावर को हम क्या कहते हैं? पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. अभी मैं जैसे सिखा रहा हूं आप सीखते जाइए. अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए, you can't forget this formula. Power is always voltage into current, and you want to have a relation between power and resistance. Voltage is already there, so now apply Ohm's law. Current आपको दिया हुआ नहीं है, you need to push this fellow out, so power becomes voltage into. Now recall Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? V upon I is equal to R, right? And you have got I on top, so I becomes V by R. So power's formula in terms of voltage, and this is V square by R. अगर आपको आता है बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से you should know this, then only you can save time. Power is equal to V square. उसमें नहीं है बेटू, हम यहाँ से कर रहे हैं. There is nothing on Skype today. We'll do from here only. I've brought the, I've made it and brought. The power equal to V square by R. Can we quickly calculate? Now here also you can apply your head. Look, both are V square, V square. They have not asked you value. They have asked you which has greater resistance. है ना? Which has greater resistance. तो resistance का formula क्या होता है? अगर यहाँ से देखें, resistance becomes equals to R, उधर चला जाएगा तो V square by P. Clear है? दोनों ही केस में V square का वैल्यू सेम आएगा. अगर रेजिस्टेंस नीचे करना है, पावर ज्यादा होना चाहिए. देखो किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है. सो R1 as a resistance, our answer finally should come R1 as a resistance is greater than R2. How many of you understood this problem? How many did not understand? Read the question. This is a typical question where they have given you two type of loads, their voltages. This is typical scenario of our, this is a scenario of our house. कैसा? A bulb in my house and a bulb in Neha's house. दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट पे चलते हैं. मेरे घर का बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, ज्यादा रोशनी देता है, ज्यादा पावर भी पीता है. नेहा का बल्ब कितना है? 60 वॉट्स का है, कम पावर पीता है. हमें पूछा इन दोनों बल्बों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो सबसे पहले यू शुड नो द फॉर्मूला दैट टाइज पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर पावर इक्वल टू VI, और I को एबॉलिश कीजिए थ्रू ओम्स लॉ. नाउ यू गेट अ फॉर्मूला R. यही फॉर्मूला से आप वर्किंग करेंगे ना इस प्रॉब्लम का. R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. तो V स्क्वायर इन केस ऑफ नेहा एंड V स्क्वायर इन केस ऑफ मी बोथ आर सेम. सो हु विल क्लेम द मैच? P विल क्लेम द मैच. मेरे घर का पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा, अच्छा, और एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए. ओके, लेट्स अप्लाई वन मोर कॉमन सेंस. इट्स नॉट अबाउट गेटिंग ओनली द आंसर, यू शुड आल्सो नो. वी गॉट दैट 100 वॉट वाला जो बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द 60 वॉट बल्ब. ये आपको मिला है कि नहीं आंसर? राइट. नाउ अप्लाई कॉमन सेंस. व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. जो ज्यादा करंट को अपने से जाने देगा उसका पावर ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट कौन जाने देता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है. तो ये ससुरा का रेजिस्टेंस कम होना ही पड़ेगा, इसीलिए ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है. जस्ट थिंक, व्हाई इज इट एबल टू कंज्यूम मोर पावर? वोल्टेज इज सेम बिकॉज इट इज allowing more current to pass through it. That means the stubbornness inside this bulb is less, so its resistance less. This is the classic way to understand the whole problem. If you have still not understood, I'm ready to explain again.
the concept. Have you understood? So that you have no iota of doubt. Whose power is more? The one whose resistance is less. वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि वो ज्यादा करंट जाने देगा अपने से. मोबाइल क्यों ऑन किया है? कैलकुलेटिंग मत करो, हाथ से करो. स्कूल में थोड़ी मोबाइल देगा तुम्हें. Anyway, you have to just answer whose resistance is more. You need not calculate. You can write that the denominator in this case is more, therefore the resistance. Who has asked you to calculate? It's not about calculating. Can we close this problem, all of you? Anyone has a doubt? No. चलिए next वाला देखते हैं. How much energy is converted by a device that draws 1.5 amperes? So we need to find out energy. We have been given current. We have been given voltage and we have been given time. बहुत बढ़िया है. तो हमारे पास हमें एनर्जी निकालना है और हमें दिया क्या क्या है? करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, टाइम दिया है. ठीक है, बहुत तरह से कर सकते हैं. पहले तो यही कर लो, पावर इज इक्वल टू VI. ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला. एनी सॉर्ट ऑफ पावर इज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? पावर इनटू टाइम. यानी एनर्जी को अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? VIT. राइट? इज V given to you? Yes. Is I given to you? Yes. Is T given to you? यहीं पे गड़बड़ है. 2 hours में है. Here the time is always in seconds. So please convert the time into seconds and then solve. हाँ, ये आंसर किस में आएगा? What is the unit you will get for energy? Joules. And the answer will be in joules. See, power is equal to energy by time, whether you are doing mechanical power, electric power, nuclear power, any power. Power is always energy upon time. ये प्रॉब्लम समझ में आया? निकला? वर्कआउट करके देखिए सब लोग. बात करो ना एक दूसरे से कि आंसर मैच हुआ कि नहीं. Because in exam you have to, these are all board problems. All are board problems. You solve it and you see whether your answer have tallied or not. If you are online, you give a call out, sir, मेरा आंसर इतना आया, दूसरे के साथ मैच कर रहा है कि नहीं देख तो लो. What is your exam tomorrow? Bunking है. Zoe must be in French. And that fellow Amulya is having Hindi. उसने बंक मारा है, वो तो नहीं दिख रहा है. आया आंसर वर्कआउट? 1.5 एम्पियर्स. 1.5 को कैसे लिखोगे? 3/2 लिखो. कैलकुलेशन करना इजी होता है. फिर V इंटू I. V कितना है? 12 इंटू T. T कितना है? 2 घंटा. 2 घंटा मीन्स 7200. अब देखो तो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया. इसको काटेंगे तो कितना से चला जाएगा? 36. 36 इंटू 36. 129600. हाँ, उसको अगर किलो जूल्स लिखना है तो 1000 से डिवाइड. कैन वी गो अहेड? एनी क्वेरी, एनीवन ऑन दिस क्वेश्चन? ऑल फाइन? ठीक है, चले. थोड़ा ऑनलाइन बच्चों थोड़ा मुंडी उंडी हिला देना. हाँ सर फाइन, या हाथ उठा देना तो मैं समझूंगा हम जा सकते हैं. मैच किया? आ दिया? आगे बढ़े. चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन कैसा है. हाउ टू रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R1. आराम से पढ़िए. 2 रेजिस्टर्स, दोनों का वैल्यू लेकिन R1 और R1 ही है. रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड. सो रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस 2 तरह से कनेक्ट हो सकता है, आइदर इन सीरियल और इन पैरेलल. ठीक है. टू अ बैटरी ऑफ EMF V volts. जेनरिक क्वेश्चन है. so that the electrical power consumed is minimum. ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है. जरा सोचो, पावर का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा? पावर इज इक्वल टू VI. पावर को अगर ना, वोल्टेज इज फिक्स्ड विथ यू. वोल्टेज को हमने फिक्स किया है V वोल्ट्स में, है ना. दिस इज फिक्स्ड. पावर को डाउन करना है तो फिर I को डाउन करना पड़ेगा. दैट इज द वे टू डू द प्रॉब्लम. I को डाउन करना है, लेस करंट शुड गो. अगर I को डाउन करना है तो रेजिस्टेंस को अप करना है. जरा सोच के देखो तो. I want less current to go, so the stubbornness should increase.
अब सवाल आता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। in parallel, you know, sorry, in parallel R1 and R2, in parallel R1 and R2, in parallel R1 and R2 will become, yeah, if you do parallel, then it will become what, R1 by 2 हो जाएगा, और अगर आप सीरीज करोगे तो 2R हो जाएगा. So did you answer the first question? Have you answered? Yeah. How should the two resistors be connected? Two resistances should always be connected in series so that the power consumed is minimum. Why? Because if you connect them in series, the overall resistance of the circuit falls. As a result, more current can pass through the circuit, and power is always directly proportional to the amount of current. ज़्यादा current pass करेगा. So हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, the two resistances must be connected in series, because if you do so, then circuit resistance is maximum. If circuit resistance is maximum, that means circuit current is minimum, and if circuit current is minimum, the power drawn is also minimum. A logic रख लो, देख, क्लियर, समझेंगे? अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के लाइन में क्या है. नेक्स्ट वाला कहता है, एक घर में 3 बल्ब है 100 वॉट के, एंड दे आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स अ डे. ये टिपिकली KWH प्रॉब्लम. 2 फैन हैं 50 वॉट के, और उन्हें 10 आवर पर डे यूज होता है, और एक हीटर है किलोवाट में, हाँ ख्याल रखिए, 1000 वॉट, हाफ एन आवर अ डे. कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ ऑफ, देखो कैसा किया, 30 भी नहीं किया, 31 डेज, एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज ₹3.60 पर किलोवाट. ये कैलकुलेशन सेंट्रिक प्रॉब्लम है, करेंगे इसको. चलो, ₹3.60. अच्छा, हमें क्या निकालना है पहले, ये किलोवाट आवर हमें क्या बताता है, एट द रेट ऑफ रुपीज. दिस इज आवर एनर्जी. ये घर कितना एनर्जी पीता है, और एनर्जी का रेट आपको दिया है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड इज what is the total energy consumption of this house. ऐसे प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम हम करेंगे by making a tabulation chart. ठीक है, आइए ये वाला पहला क्वेश्चन मिटा दिया. हाँ, पहला वाला पार्ट तो पूरा ही मिट जाता है, अंदर चला गया होगा. हाँ, because it's no issues. So what we will do is, चलो अप्लायंसेस कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर, अप्लायंस, पावर रेटिंग, ड्यूरेशन, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एंड देन आपको KWH पे निकालना है. सो लेट्स मेक आवर चार्ट. आई एम मेकिंग अ चार्ट. Right, what all are the devices? We have got bulbs, fan, and electric heater. Okay, right, so 3 columns, 3 rows, bulb, column, and electric heater. So this is my header. Okay, then this is my serial number. I have got bulbs, I have got this. Initially I am making only 1 column, and let me write. So serial number, so I have 01, 02, 03. So here I'll have my load. First type of load are bulb. The second is fan. The third is heater. Then I'm making one more, which is my rating. And mind you, the rating is given in, I'm writing the ratings in watts.
ताकि इजी हो। कितना है बच्चा बल्ब का रेटिंग? 100 वॉट लिख लेंगे ना, इसके बाद 100 वॉट। फिर वो कितना है 50 वॉट का फैन, और हीटर कितने का है 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। इसके बाद मैं लिखूंगा क्वांटिटी, ड्यूरेशन, डेली एनर्जी डिमांड एंड मंथली डिमांड। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। अच्छा अभी लेकिन टाइम आवर्स में रखिए, बिकॉज विल डू एवरीथिंग इन किलोवाट आवर। ओके, सो one thing that I went wrong, you should do it this way, this one, hang on, just 1 minute, I went wrong on one item. We should rather not use watts, we should use kilowatt, because ultimately we will get everything in kilowatt hour. Chalo. So ratings will be in kilowatt. So this is 0.1, fan is 0.05 and this is 1.0 1.0। क्वांटिटी कितना है बल्ब्स के 3 बल्ब है, एंड आवर कितना चलता है 5 घंटा डेली। 5 3s are 15, 15 into 0.1 is 1.5, so this is 1.5, this is kWh, this is daily, and here we will have monthly, this will also be in kWh। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद हमारा फैन कितना चल रहा है, 2 फैन कितना देर चलता है बेटो 10 hours, 10 2s are 20, 20 into 5 100, but this is 0.5, तो 20 into 5 100 करने के बाद ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको डाउट है तो आप करके देखो, 5 को 5/100 ले लो ना, 5 को 5/100 ले लो, so 2 into 10 is 20, 20 into 5 is 100, 100 divided by 100, 1 किलोवाट। ठीक है, और उसके बाद कौन चल रहा है हीटर। हीटर कितना देर चलता है, एक ही हीटर है और ये हाफ आवर चलता है डेली, सो दिस विल गिव मी 0.5। नाउ इज द इश्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग विद 31, तो 31 का मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, 30 से मल्टीप्लाई करो। 1.5 into 30 is how much? 15 3s are 45, 15 into 3 करो सीधा 45, 15 into 30 is how much? 450, 450 पे एक जगह पॉइंट 45, 45 और एक दिन का डालो 46.5, और एक दिन का डेढ़ 46.5, 30 प्लस तो 46.5। क्लियर? ये समझ में आया कैसे किया? इसको करो 1 into 30 days is 30, और एक और दिन है तो ये 31 बनेगा 31.0, और 0.5 मतलब हाफ है, तो एक महीने का कितना लेगा ये 15, और फिर एक दिन के लिए कितना लेगा और हाफ 15.5। अब यहां पे हम लिखेंगे मंथली कंजम्पशन, एकदम 5 मार्क्स क्वेश्चन में फुल मार्क्स kWh। चलो जोड़ो, 5 और 5 पे हो गया हमारा 0, 1 कैरी ओवर, 1 and 5 6, 6 and 1 7, 7 and 6 13 का 3, 1 कैरी ओवर, 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 and 4 9, 93 kWh इज आवर मंथली डिमांड। तो कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा 93.0 kWh मल्टीप्लाइड बाय कितना है 3 रुपया 60 पैसा रुपीज पर kWh। kWh ने kWh को काटा, अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए। ये आप कर लो, पर ऐसा घिनौना नहीं देता है, हाँ वो 30 करके ही देगा। एवरी क्वेश्चन इज नॉट बोर्ड क्वेश्चन, वो 30 करके देगा। But did you understand how to proceed with such problems? Yes. What mistake did Jaideep Das do? He made it watt. Please don't make it watt, make it kilowatt. End of the day, the energy consumption will be in kilowatt hour. ये आपका घर का बिल भी ऐसे कैलकुलेट होता है। खाली हमारे घर में अभी 3.6 की जगह 8 रुपीज लगता है, और डीजी चलने से अराउंड 28-29 रुपीज।
So I pulled another LAN cable also after cleaning the yellow one. I just have to put the clips. Sanvi madam, comfortable with this type of problem? Whenever you see decimal bitu, don't go ahead with the decimal, make it fraction. Life becomes easier. क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बड़े इजी होते हैं. इसमें अगर मार्क पीयू ये प्रॉब्लम ओके है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें नंबर जाने से बहुत दुख होगा. 334.8 कितना आया? 334.8 यहाँ पे. क्या सानवी नहीं किया? क्या छोड़ दिया था? हैं? That I'll do. How much did you get? पीयू भी देखो अभी करना शुरू कर रही है. अब तक ठीक था. 334.8 is the answer. I mean, 2 people have got means he has also got, she has also got. क्लोज करें इस प्रॉब्लम को. समझ में आया KWH के प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं? सुंदर से सीरियल नंबर बनाइएगा, लोड्स लिख लीजिएगा, रेटिंग को किलोवाट में लिखिएगा, क्वांटिटी, टाइम, किलोवाट आवर डेली, किलोवाट आवर मंथली, और फिर टोटल को जोड़ के पेसों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ इसमें और कोई क्वेश्चन था क्या? हो गया ना इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इस, ये सवाल पढ़ते हैं. कैसा इंटरेस्टिंग सवाल है. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यानी कि दिस इज द लोड. फिर हमें V का वैल्यू दिया हुआ है. इफ द करंट ड्रॉन, यानी कि I का वैल्यू दे दिया है. हमें बोला पावर निकालो. भैया पावर तो होता है Y, निकाल लो. इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे? इसको हाफ लेके करो. हाफ इंटू 220 is 110. डोंट डू इट 220 इंटू 0.5. 0.5 इज हाफ. हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110. 110 वॉट? माई हेड और योर हेड? जूल्स, वॉट्स. So this becomes half multiplied by 220, यानी कि ये हो गया 110 वॉट्स. क्लियर? चलें दूसरे प्रॉब्लम में. रेड का पिकअप वीक होता है. ए सानवी, आर यू एबल टू सी दिस रेड कलर ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. It's coming? But yellow pickup is better, I think, ना? Yellow is better, yeah. But you love red ना, तो पूरा रेड में ही कहानी लिखता है. अच्छा, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, बोले तो पावर दिया हुआ है, ऑपरेट्स 8 आवर्स ए डे, टाइम दिया हुआ है. कैलकुलेट द एनर्जी पर डे इन KWH. KWH में बोला है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, इसको हम लिखेंगे 0.4 KW, और ये तो भैया H पे ही है, तो इसको 8 से गुना करेंगे. 8 4 पे हो गया 32, यानी कि 3.2 KWH प्रतिदिन बोला है. आप क्लियर? क्यों मोबाइल क्यों दाब रही है? ना 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 ना, छोड़ दो छोड़ दो. 11 में क्या करोगी? सर मैं 11 में साइंस नहीं लूंगी, ये बात नहीं है. पर आप मोबाइल तो नहीं कर सकते हो. मोबाइल छोड़ 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 दो. मैं कैसे कर रहा हूं देखो. 400 दिया है ना, 400 को किलोवाट करेंगे तो कितना हो गया? 0.4. 0.4 को 8 से, तो 8 को तू बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर, कितना होता है? 32. पॉइंट से करेंगे तो 0.1 घर इधर शिफ्ट हो गया, 3.2. बस खत्म. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर. बहुत इंटरेस्टिंग. चलो सानवी मैडम आप बोलिए तो, किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या फर्क है? Why is sir always targeting me? Why does he do this to me only? Kilowatt is kilowatt and Kilowatt hour is kilowatt hour. Jaideep is Jaideep and Jaideep Das is with this. है पीहू बता, किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है? Sir, kilowatt is the unit of power. Yes. And kilowatt hour is the unit of energy. Perfect. किलोवाट इज द यूनिट ऑफ वॉट. देखो वॉट का जन्म किसने दिया? वॉट का जन्म VI ने दिया, और इसको अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बना? किलोवाट आवर. यानी कि ये ससुरा हमें पावर के बारे में बताता है, और पावर को आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, भाई साहब एनर्जी हो गई है. किलोवाट आवर इज एनर्जी.
No, we will say what is the difference. Kilowatt is the unit of power, whereas kilowatt hour is the unit of energy. So you can write, if you see the number of, if the question is 1 mark, it's 1 mark. 3 marks है तो दोनों में लिख दो थोड़ा सा एक्सप्रेशन. आप जो घर में पैसे देते हो ना, इसके बदौलत देते हो. हमें कोई मतलब नहीं आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे मतलब है. भाई साहब ये क्वेश्चन ठीक ठाक. आगे बढ़े खेल के अगले पड़ाव में. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद आइए राउंड 2. अब आप कम से कम यहां से 13,500 रुपए जीत कर ही जाएंगे. अगला सवाल, और यहां से टाइम की कोई लिमिट नहीं है, टिक जी चलती रहेंगी. चलिए एक क्वेश्चन है ऑनलाइन गाइस, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? तो बड़ा करूं क्या? लेजिबल और shall I make it a little bit bigger? Yes, sir. Yes, good. At least you are saying that, so I. Okay. Better? Yeah. And okay, the question says an electric lamp, तो लैंप ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमें R दिया हुआ है कितना 20 ओम, एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ये भी R है, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, 4 ओम्स, मतलब दिस इज द 4 ओम, दिस इज माय R2 एंड दिस इज माय R1. कैसा लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस हो गया 24, यानी हमारा सर्किट तो कुछ यो दिखे 24 ओम्स का, और कनेक्टेड है कैसे सोर्स के साथ? 6 वोल्ट्स, और यहाँ पे एक एम्पियर है एमीटर जो कि एम्पियर रीड करना चाहिए. ठीक है, as shown in the circuit as is shown. Now you very well know, apply, don't read the question also, just apply what you call Ohm's law. V by I equal to R. तो V by I करेंगे तो कितना 1/4, यानी कि कितना करंट जा रहा है? 0.25 एम्पियर जा रहा है ना. V upon I is equal to R. So V upon R should give you how much? I. So V का वैल्यू कितना है? 6. R का वैल्यू 24. तो I कितना हुआ? 1/4. 1/4 बोले तो 0.25 एम्पियर. अब पूछा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? Done, already done. The current through the circuit? Done. The potential difference across the electric bulb and the conductor. ये कैसे करेंगे? Always remember that since they are connected in series, so the potential difference must have got split into V1 and V2, है ना? Such that if you add V1 and V2, you should be able to get 6. ये माँ कितना रोटी बना रही है? 6 रोटी बना रही है. ये ससुरा कितना खा रहा है नहीं पता, ये कितना खा रहा है नहीं पता, वो टोटल कितने कैसरोल में थे? 6 रोटी ही थे. अब इसमें इंडिविजुअली आप अप्लाई कीजिए क्या? ओम्स लॉ, जो कि आपको वैल्यू दिया हुआ है. तो हमारा क्या हो जाएगा? V1 by R1 should be equal to, अब I1 मत बोलना, this is a series circuit, so the current is always constant, so the current should be equal to how much? Don't write 0.25 again, write 1/4. It is easy to do the problem. तो V1 कितना हो गया हमारा? R1 4/4, यानी V1 खा रहा है कितना? 1 वोल्ट. अब इडियट की तरह दूसरा सॉल्व मत करो. 5 वोल्ट. गुड मैडम, एंजॉयड दैट. ये 1 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट. लेकिन तन्ने विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो विश्वास ले लो. कैसे करेंगे इसको? V2 कर लेते हैं एक बार फिर भी. V2 हमारा क्या हो जाएगा? R2 इंटू I. R2 कितना है हमारा? R2 नहीं, अच्छा ये वाला R1 हो जाएगा ना इस केस में. R1 कितना है हमारा? 20 इंटू 1/4, 5 होना ही पड़ेगा. पावर ऑफ द लैंप का पावर जो है PL विल बी इक्वल टू VL इंटू I. लैंप का पावर वोल्टेज इंटू लैंप से जो करंट जा रहा है. लैंप का वोल्टेज कितना आया था भाई साहब? लैंप का अभी 5 वोल्ट आया था. 5 वोल्ट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? I बोले तो 1/4 कितना हुआ? 4 1 जा 4, 10 4 2 जा 8, 2 20, 4 5. 1.25 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है ये लैंप. समझ में आया? कुछ हार्ड नहीं है. As we end the class, I'll again write the formulas. आप एक बार the formulas come in your
मजा नहीं लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले तेरे से फॉर्मूला देख लेते फिर से। V क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज, W बाई क्यू। I क्या होता है? Q अपॉन T। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बाई I इक्वल टू R। इतना तक हो गया। उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रो L अपॉन A। उसके बाद आता है R सीरीज R पैरेलल। R सीरीज में होता है R1 प्लस R2 टू Rn। R पैरेलल 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद जन्म हुआ पावर का, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आवर। 3600 को सेकंड करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 into 10 to the power 6 joules. Then comes heating effect. H is equal to I square R T. Power is also equal to I square R. Because power, what was energy? Power क्या था? Power was energy by time. So time, energy should be power into time. So if energy is equal to I square RT, energy is equal to I square RT. हमने पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी, तो टी टी ससुरा एक है तो ये फिर एक ही हुआ ना, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कहीं ऐसे हो जाता है। एक चीज याद रखिए, पावर जो है ये है वाई, ये याद तो सब याद। ये पूरे चैप्टर में एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, एक रेजिस्टिविटी याद रखो, आर सीरीज और आर पैरेलल, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ये नहीं याद रख सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला सवाल 25,000 रुपए के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। Sanvi, can we read this? Why is he always asking me? Because she has her icon as a yogurt bottle. Why on earth that yogurt bottle? Why not something else? Yakut. Yakut. याकूट का बॉटल है इसका। अब मैं याकूट देखने से सानवी देखता हूँ। यस, ये क्वेश्चन कर पाएंगे? ये खुद कीजिए। हेल्प चाहिए तो मैं घुसूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Oh, in fact, there is a timer option also. Let me hunt that. Ah, I know that. There is a timer option here. Clock. Wow. 6:10. Even there is a clock like chess वाला जैसा, टक करके मैं अपना टाइम दे दूंगा. If he says his answer, I can log it. The first answer came in this much time. One minute. It is not ergonomically straight. I have OCD ना. मैंने वैसे फोटोज खींच के रखे आज घर साफ करने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर। नहीं भेजा नहीं, मेरे वाइफ ने मुझे पहले बोला एक बार फोटो भेजना कैसा है, हाउ बतंगर इट इज। सो आई सेड दीस आर द बतंगर्स, एंड देन आई Did you scare your wife? हाँ, वो बोल दिया वो अब घर में ही नहीं रहना चाहिए, यू जस्ट टेक इट अवे। आई सेड आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन यू। नाउ शी इज सेइंग बट व्हाई ऑन अर्थ दैट थिंग, वो दिखना ही नहीं चाहिए। नाउ इट इज इन माय ड्रॉअर, so next day I have to bring and keep it here. And today all those skipper and all have gone had their head bath पूरा एकदम शैम्पू से। कल उनके ब्रेड्स बनेंगे, आज रात आई हैव गिवन द कॉन्ट्रैक्ट सुशील में। क्या हो गया? The first one. हाँ, how much is the first answer? One girl has already called it. कितना बोला बेटू? What? 3.75 ampere. The resistance of its heating element. Heating element, you know? Heating element is the thing inside a soldering iron or a toaster which actually heats up. So when your toaster, no, heating element means whenever your toaster goes bad, you go to the shop and you ask for a heating element दीजिए, फिर आप नया element लगाएंगे। गीजर में भी यही प्रॉब्लम होता है। What happened to Vivan Ravishankar today? Gone abroad again? Maybe. अच्छा।
Originally we can So the second option, the answer is 53.3 सेकंड आंसर इज 53.3 व्हाट बेटा? ohms. वेरी गुड, देखा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऐसा ही होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। इसने दिया ये आंसर 53.3। वानिया मैडम वाह, जा सकती हैं आप शादी में, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू बोलो मेरे को, कल तुम्हारा ओके कर दिया। Thank you, sir. और नहीं तो क्या। एनर्जी कंज्यूम बाय द आयरन इन 2 आवर्स। 2 आवर्स, ध्यान रहे 2 आवर्स। बोलिए ना, लिखते हैं। लेट समबडी, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, कोई ना कोई इसे रोकेगा। एनर्जी कंज्यूम्ड KWH में, आपने KWH में निकाला 10 जूल्स होगा वो। हाँ 10800 जूल्स। बेटा अगर ये आपका राइट आंसर है, ऐसे मत छोड़िए उसको, इसको लिखिएगा 10.8 किलो जूल्स। बेटर लगता है देखने में, लेकिन इसको देखते हैं। लेट somebody else also solve and see whether we're getting the same answer or not. right 5400. Adi, after new SIM card number has come, life has become very nice. Yesterday he is very happy, he has got a new SIM card number. सीलिंग कम दिखाओ, थोड़ा चेहरा दिखाओ, समझ में आ रहा है? तेजस बिटू, ऑल ओके? वेरी गुड। Hey, this one I need one more validation, huh? 5,400 kilojoules. Kilojoules. You are getting how much? 5,000? ऐसा आंसर क्यों आ रहा है? बतंगर आंसर। पीहू कितना आया देखो, ये दोनों मैच किया पीहू, 3.75 और ये। So the second one I got a different answer. What did you get? बोलो ना, बोलो। So I got 64.5. 64.5 ohms। बढ़िया, ऐसा होना चाहिए ना। अब ये देखते हैं। We have 2 call outs for 53.3। आपको भी मिला? So I should do 53. और we have 3 call outs। तो पीहू एक बार चेक कर, हो सकता है you may be correct, but chances are less। और वानिया, आपने अगर इसको 53.3 किया तो आपका ये कितना आया एनर्जी? सर मैं कैलकुलेशन मतलब मैं वापस से कर रही हूँ। घड़ी कितने में छोड़ा था पता है आप लोगों को? 5 मिनट जा चुका है। अभी तुम्हें हेरिडिटरी के क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं यहां तक करेक्ट ले लूं? 5400 KJ और J। उसमें भी ऐसा क्यों हो रहा है आंख? एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है ना? पावर के लिए यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है, इसको जूल्स में ही कर सकते हैं। पावर 750 है और टाइम कितना दिया हुआ है आपको? पावर है आपका 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब है, अरे भूतनी को, तुम लोग को ये मल्टीप्लिकेशन में इतने आंसर आ रहे हैं तुम लोगों को, तो हो गया ना 7200। 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज हाउ मच? 70 70 140 150 150 का 0 15 कैरी ओवर। 75 इंटू 7, 75 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा? 750। हाँ 9 करेंगे तो 750 से आगे 675, 8 करेंगे तो 600, 7 करेंगे तो
525 525 पे कितना रह गया था 15 525 530 5 525 535 540 540 हो गया और हमने 75 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 और शून्य बचे हुए हैं, तो आंसर आपका होगा 540 किलो जूल्स। अफसोस आपका खेल इतना ही है आज। कैसे? एक और जीरो आएगा उसमें। हाँ, इसमें एक और जीरो आएगा। हाँ, 72 है ना, 72 इंटू दिस, हाँ एक और जीरो आएगा, तो ये 5400 किलो जूल्स, यही करेक्ट आंसर है। अभी भी किसी को शंका? तो ये क्या, ये यहाँ पे क्या लटक रहे थे? ये तो मुंह से हो गया। नहीं नहीं, 75 और 72 को जुबान से भी तो हो सकता है। तो 2 क्यों? तो 2 आवर्स के लिए तो ये 7200। तो आप इसको ऐसे लिखो ना, आप इसको इंटू 2 लिख के 3600 करो, आपको 2 मिस नहीं होगा। पर मिले तो लड्डू ही ना। चले आगे, पीयू ओके ना? शादी करेगा, कान में हेडफोन कुछ डाला है, एयरपॉड वर्ड, न्यू नंबर। चले आगे, चलिए। डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट। हाँ, क्लॉक को बंद कर देते हैं, अभी क्लॉक फिर आ जाएगा। डिफाइन पावर एंड स्टेट इज यूनिट कर पाएंगे? पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। स्टेट इज यूनिट इज वॉट, और लिख लीजिएगा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड, ताकि काटने का कोई चांस ना रहे। अच्छा, टॉर्च का एक बल्ब है भैया, जिसका वोल्टेज दिया हुआ है और करंट है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब समझे हैं? 500 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर। जीरो ने जीरो को काटा, 0 0, यानी कि 0.5 एम्पियर, यानी कि प्रॉब्लम करते वक्त हाफ एम्पियर लेके कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करोगे? 0.005 10 टू दी पावर 3 दुनिया भर का लफड़ा करके करोगे, हाफ एम्पियर रखो इसको। क्लियर? चलिए, अब बोला है टॉर्च बल्ब का इतना है, कैलकुलेट इट्स पावर। पावर कितना होगा? 5 इंटू, ये पीटूंगा ना, पावर इज इक्वल टू वी आई, वी है 5, 2.5 वॉट। रेजिस्टेंस अरे V और I दिया हुआ है तो नहीं रेजिस्टेंस लिख देगा, V अपन I इज इक्वल टू R। सर को ना दरवाजे के बीच में रख के दरवाजा बंद कर दूंगा, फिर टॉम एंड जेरी की तरह तुम्हारा दरवाजा सर फ्लैट हो जाएगा ना, फिर निकाल के शेप कर दूंगा। V बाई I कितना आएगा? 10 ohms। ये आ गया 10 ohms। प्रैक्टिस नहीं है। एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 hours होगा। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या आप जूल्स में कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसे करेंगे? पावर कितना है हमारा? 2.5 वॉट। पावर इंटू टाइम होता है हमारा एनर्जी। तो टाइम कितना है? 2.5 hours। 2 hours के लिए कितना हो जाएगा? 120, और एक और हाफ आवर है, यानी कि 150। हाँ हाँ, ये तो मिनट है, सॉरी। सो 1 hour इज 3600, 3600, 7200, उसके साथ फिर 1800, 7200। देखो ये टिपिकल सीबीएसई प्रॉब्लम है, देखो कितना सुंदर मिला के दिया तुम्हें, समझ में आया? 72 के साथ 18 जोड़ने से कितना होता है? 9000। और 9000 को 2.5 से कर रहे हैं, बेवकूफ की तरह प्रॉब्लम मत कीजिएगा। पहले 9000 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा? 18000। और फिर 9000 को हाफ कीजिए, 4500, कितना हुआ? 22500 का जूल्स। kilojoules 2.5. 22.5 Yeah, 22.5. 22.5 kilojoules. You could have done in kWh also, you could have done joules also.
कमर्शियल होने से केडब्ल्यूएच, कमर्शियल मतलब जहां पैसा देखेंगे आप वहां केडब्ल्यूएच करना जरूरी है। केडब्ल्यूएच करने से ये प्रॉब्लम इजी हो जाता है, बिकॉज यू कैन देन यूज आवर्स स्ट्रेट अवे, 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स मतलब कैसे करोगे सर? आई विल टेक 2.5, 5/2, कैलकुलेशन बिकम्स इजी। समझे? यही टिप उप देने के लिए रखते हैं रिवीजन। बचुआ सब बर्थडे पार्टी में आता है लेकिन क्लास में नहीं आता है। मजेदार बच्चे। चले आगे, नेक्स्ट। वाओ, Yes. ए सानवी बोलेगी सर आई कांट सी दिस। व्हाई ओनली मी सर? देयर आर अदर्स इन द क्लास आल्सो। चलो, पहला वाला कैसा है? दोनों सीरीज में, सीरीज में कितना हो गया? 12, 12 और 6 कैसे है? पैरेलल में। चलो बनाओ। अर्जुन साहब एबल टू अंडरस्टैंड ना? ये तूने आज क्या यहाँ पे कौन सा चीज शार्पन कर दिया? देखो, पूरा घर को 3 बार मॉप मारा हूं मैं, अभी तेरे हाथ में मॉप दे दूंगा ना। ये सब क्लीन विथ स्कॉच ब्राइट से क्लीन किया टेबल। और हैमलीज हार्लीज का केक के जितने तुमने कल तिलक लगाए थे ना, और सेकंड वाला जो लेंस कार्ड का चश्मा दिख रहा है जो है ना, ये लेंस कार्ड का चश्मा है, रेक्टेंगुलर। ये ऐसा बना दो। सॉरी, First one is 4 ohms, the other one is 6 ohms. ये चश्मा हो गया वहां। Wow. ये 6 का पैरेलल है। ऐसा सुना कितना? 3 बनेगा, और ये 3 बन जाएगा। 3 और 3 का बनेगा 6 बनेगा, 6 ohms। ये समझ में आया कैसे हुआ? 6 और 6 का हमेशा होता है 3, 6 और 6 का 3, 3 सीरीज में हो गया तो हो गया 6। आज अच्छा, ये टाइप के प्रॉब्लम करने से दिमाग खुलता है। चलें आगे। एनीवन, एनी प्रॉब्लम इन दीस टू? नेक्स्ट वन थोड़ा सा ट्विस्ट। आइए इसको करते हैं। No. नो, अरे Yeah, same. हाँ, ये सेम प्रॉब्लम है ना? The same. हाँ, सेम प्रॉब्लम। Bits parallel. मतलब ये तो सेम नहीं है ना? हाँ, तो इसमें मौत तो तुम्हारी होनी है भैया, नहीं तो हाँ लो ये करो। इसमें सिर्फ आपको कैसे मेड टू मूव टॉय की तरह देखना है इसको। जो आकृति में आपको दिया है एक्चुअली वैसा नहीं होता है। आपको इसमें पैरेलल और सीरीज ढूंढना है। इट इज लाइक मेड टू मूव टाइप। ये वाला आपको कैसा दिख रहा है? हमको तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, उसके साथ पैरेलल। बोले तो ये सर्किट हमको ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा और एक ऐसा, ऊपर वाला 3 ohm, नीचे वाला 3/2। क्यों 3/2 किया? Easy. इजी होगा। अच्छा, उसको कैसा दिख रहा है? 3 and 2 are. इसमें तीन पैरेलल आर्म्स हैं। एक पैरेलल आर्म, 2 पैरेलल आर्म, तीसरा पैरेलल। ऊपर वाले पैरेलल आर्म में है 5 ohm, नीचे वाले में है 5 ohm, और ससुरा बीच में है 1 ohm। निकालिए। न्यूमेरिकल करा दिया, नोट्स दे दिया। और भी कोई दर्द है तो बोलिएगा, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। अगले क्लास में हम चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। यही लास्ट प्रॉब्लम था। और यही अगर मैं आज तुम लोगों को छोड़ देता ना करने के लिए, आई बेट पूरे क्लास में ये खत्म नहीं होता। 4 प्रॉब्लम करते तुम लोग फॉर द होल क्लास। हम व्हाट इज द टाइम नाउ? हाँ, घर होने से वी कैन स्टिल गो 1 राउंड टू द किचन, ओपन द फ्रिज, गो टू वॉशरूम, वो हाथ दर्द, पाँव दर्द, चॉकलेट खाना, नमकीन खाना, फिर बैठ के और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। मन में इच्छा होनी चाहिए। उस दिन एक चीज, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन 5% नहीं बना, शाहरुख का बेटा शाहरुख का 5% नहीं बना, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर का 5% नहीं बना। क्या उनके पास पैसे और अपॉर्चुनिटीज की कमी थी?
एक ही चीज की कमी है, वो है जिद. As there are very good management institute talks of Saurav Ganguly. There he says one that when he was KKR captain, Shah Rukh Khan once came and told him that when he was brought into Bollywood, people rejected him. He's no, you're not good looking. तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा हाइट नहीं है. हर रोज उस दिन से वो he gets up and he says in front of the mirror, I'm the best. और I'm the best करते हैं, I'm the best गाना भी हो गया उसके ऊपर. तो भाई साहब एक जिद रखिए कि आप करेंगे तो हो सकता है. A is 1/2. ये कितना है ओवरऑल? 1/1.2 ohms. बोलना भी नहीं आता है कि एक बार बोलता 1/2. कितना है? 1.2 ohms. I also need a call out from someone else. How much did you get? Somebody says 1 ohm. बस हो गया dispute. And the second one 0.71 ohms. 0.71. check. ये कितना हो गया? इसमें हमारे पास है 1.5. So 1 by R equivalent will be equal to 1 by 3/2. 1 by 3/2 बोले तो 2/3 प्लस इधर कितना मिला? 1 by. तो मर जाओ यार, मर जाओ. 3 + 3 कितना? This is 1 ohm. कचरा हो, कचरा पूरा. ये वाला did it tally with others? I got that. Very good. That was what I had with me, but I'm not saying now. You can open your computers, you can do, there are some questions that you all had. If there is any question, there are huge questions, plethora of questions are there. अब आप देखो आपको कोई चीज समझ में नहीं आया क्या? Because today we are bidding bye-bye to electricity. Is there any concept that you don't understand? Just don't say I don't understand because you have to pass time. If you really don't understand. So ये पहले चल रहा है. फेंक देना. साइंस पढ़ना छोड़ दो तुम लोग. पेन नहीं चल रहा. पेन को चलाओ. नहीं चला. तुमने कोशिश ही नहीं की. रिफिल में है ना अभी भी? अगर रिफिल है तो चलना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? जम गया होगा. इसको फ्रिक्शन से हीट दीजिए. अब कोशिश कीजिए. तो अगर अब भी नहीं लिखा तो फिर पेन में कुछ गड़बड़ी है. हाँ, तो फिर इसका बॉल घिस गया है. खच खच कर रहा है ना, पेपर स्क्रैच कर रहा है. So this is good to go to the dustbin. And if it doesn't work, you can always apply heat. It melts the ink inside. You can try some more pens are out there. Yeah, anyone has any query in anything on electricity, any topic that you don't understand? तो फिर क्वेश्चन पेपर कीजिए. Yes. Parallel combination. What do you want? How does that expression come or something like that? What do you want? अच्छा, parallel combination. देखो parallel combination क्या है. So let's see parallel combination. Okay. So let's make a parallel network. These are, say, R1, R2, R3. First, get your basic clear. They are connected across a voltage source, which is supplying V. In parallel, the voltage across any arm will always remain constant. मतलब यहाँ भी V जा रहा है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है. That's the first thing we need to understand. There are 3 arms out here. Arm 1, Arm 2, Arm 3. All will have the same voltage. However, as the current starts to flow, वो यहाँ जाके सोचता है, ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు. There are 3 roads. कहीं भी जा सकता है. तो इधर I1 जाएगा, I2. The current splits up in parallel. Then after that, this is one constant source. Until and unless you get another road, current will not split. I1, I2, and I3 all combine again and become I. So one of the expression that we have got is that the I is equal to I1 plus I2 plus I3. Have you understood this?
In the case of series, the voltage would have split as V equal to V1 plus V2 plus V3. If you have understood this, then everything becomes clear. अब गिरेंगे नीचे. हाँ, मैं कल से सबको जितने बड़े नेहा इस सबको वो जो है ना बेकमैन का वो कैप पहना के लाऊंगा. 1 किलो निकलता है यहाँ से. उसमें बॉयज तो एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, विवान आ सकता है. ही में क्वालिफाई इन प्रीलिम्स. ओके, I equal to I1 plus I2 plus I3. Now what is I1? Each में Ohm's law apply करना शुरू करो. Ohm's law says V by I is equal to R. So I1, if I take it this side, should be equal to V by R1. Have you understood this? So let's apply that. So this becomes V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. And if there are more branches, it becomes dot dot dot. It becomes dot 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 V upon Rn. In such a scenario, I can take the V common and make it 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 1 upon Rn. Do you agree? And in this case, the V comes here, it becomes I upon V. Right? Now, what is I upon V? Again, we know V by I is equal to R. So I upon V should be equal to 1 by R. But what is this 1 by R? If this whole circuit would have been replaced by one common resistance, and this resistance is called the R equivalent, then this is the R equivalent. So I by V is nothing but 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. किताब देखने की जरूरत ही नहीं. Concept clear, nothing to fear. But your concept is not clear, so everything is ghost and you fear. है ना आदिया? YouTube ठीक चल रहा है? बढ़िया. और बोलिए. Any problem on monthly bill, kilowatt hour, fuse, heating effect of current? What are the applications of heating effect of current? The bulb, the fuse, the toaster. Alloys will have more heating effect. Alloys have more resistance than the metal alone. And why are they preferred for heating elements? Because their resistance is more, they can create more heat, they get less oxidation में कम होता है. हाँ क्या? एक question में से नहीं हुआ. ये साइंस? No. मैथ्स? तो ये रोक ले? ये? This was the only thing I could just remember. हाँ, ये थोड़ा सोचने से हो जाएगा. Cot square and 1 by cot square. See, this question is 1 by 1 plus tan square theta. And this is 1 minus sin square theta. What is it? Cos square theta. इसको लेके midway रखो, इसको लेके midway रखो. इसको अगर आप, if you try to do what you call LCM of this, cot square theta into ये हो जाएगा cot square theta plus 1. tan square के साथ कट जाएगा. अरे 1 plus sin square is an identity. कोई फायदा नहीं होता है ना 1 प्लस tan square theta को sec square theta करने से. तुम्हारा फायदा क्या होगा? cot square से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? cot square theta plus 1. cot square into tan square is 1. cosec square theta equal to Sec 1 by sin. 1 by sin. what is the third identity? Oh, 1 plus tan square. अगर लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, ये याद रखो. Yeah. सेकेंड आइडेंटिटी आता है, इसको पूरा साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो. 1 प्लस cot square theta इक्वल टू cosec square theta. समझ में आया? ये क्या रिप्लेस करने के लिए बोला था वहां पे? This will become cosec square theta. Did you understand? And the second identity comes by dividing this whole by cos square theta. So this becomes tan square theta plus 1 equal to sec square theta. ऐसे याद रखते हैं. क्लास 11 में आपको 25 आइडेंटिटी आएगा, तब कैसे तीन नहीं संभल रहा है ना? तो वही बात हो गई. हमारे घर में एक बीवी नहीं संभल रही है, कृष्ण जी के पास 16,000 बीवियां हैं, कैसे संभाल रही? समझे कहां बेवकूफी बना? तुमको क्या है, तुमको गाजर दिखाया क्या? 1 प्लस tan square theta इज एन आइडेंटिटी. ले आइडेंटिटी करके फंसा रहेगा बीच में. cot square को कहां गायब करेगा? This was the only one that I get.
अच्छा, देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम, ये ग्लेंडल वाला कोई है यहाँ पे? देयर वाज वन नाइस प्रॉब्लम, योर सर हैड गिवन sin 2 theta 2 is equal to √3. ऐसा प्रॉब्लम फंसने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, sin 2 theta equal to √3/2, यानी कि 2 थीटा कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। अब आपको बोला cos 2 थीटा निकालने के लिए, ये 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, बस खत्म। You did this, you did this. Go into science. Why did you do this? Second one, just value. In grade 11, you will learn one formula that sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. This is in grade 11 you will learn. And cos 2 theta 2 cosec square theta minus 1 equal to cos 2 theta. Cos square theta minus cos 2 theta. ये सब आएगा आपको। sin 3 theta भी आएगा एक। sin 3 theta which will be equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. इसमें हमें याद ऐसे रखना पड़ेगा, cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ये एक हुआ। फिर आपको आएगा sin of a plus b, ये एक फॉर्मूला सीरीज आएगा, sin a cos b plus cos a sin b। फिर आएगा sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। रोज करोगे याद रहेगा, नहीं करो राइट नाउ लाइक आई एम स्ट्रगलिंग बाय माय डॉटर ना, वो बीच बीच में सब गोलू करता है, वो गोलू करता है तो मेरे याद आता है, तो होगा आपको ऐसे ऐसे बहुत आए। tan 2 थीटा आएगा, tan 3 थीटा आएगा, cot 2 थीटा आएगा। अभी तो साइन इनवर्स अपना गेम दिखाया ही नहीं है तुमको, साइन इनवर्स भी आएगा, ये भी आएगा। हाँ, सो days ahead are very very bad days. So pray that your current day is good and you will actually laugh at the level of maths you are doing same time next year। ये कोई मैथ्स था सर जो हमने किया था? ठीक है, रखें फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम ने आद्या मैडम यही समाप्त।